Yes, Sonal, you can start. Good evening, everyone. On behalf of the organizer and founder of CASA, CA Sumit Gargji, I extend a very warm welcome to all the participants who have joined us today for this webinar on taxation, audit, and renewal of NPOs. In this session, we'll cover the latest updates and practical aspects of taxation in relation to NPOs, key consideration in the audit process, compliance requirements, and best practices, procedural aspects and practical challenges in the renewal of NPOs, along with tips for smooth compliance. This discussion will not only enrich our technical knowledge, but also equip us with practical tools to apply in our professional journey. Today's topic will be deliberated by our distinguished speaker, CA Ved Mittal sir, and it is indeed my privilege to introduce him. CA Ved Mittalji is a seasoned professional with over 25 years of rich experience. He is a fellow member of our institute and a partner at Messrs. Ved and Associates Chartered Accountants, which is based in Preet Vihar, Delhi. He completed his graduation from AMU Aligarh. CA Ved Mittalji is also a guest faculty for the ICAI certification course on NPOs. In addition, he has qualified the FAFD course and the Independent Directors Program from IICA. He has delivered numerous seminars and webinars across various ICI forums and study circles. His deep technical knowledge combined with practical insights makes him an authority on today's topic. Now, I would also like to introduce CA Sumit Gargji, founder CASA. He is a fellow member of ICI with over 19 plus years of professional experience. He has also served as the secretary of NIRC of ICI during his tenure as a regional council member. CASA is an initiative dedicated to the growth and welfare of the CA profession since 2010. Under Sumitji's leadership, CASA has been consistently working towards grooming young chartered accountants and creating platforms for knowledge sharing through regular webinars, seminars by expert faculties, and various other professional development activities. Now, I would like to invite CA Sumit Gargji to kindly share a few words with us. Thank you, Sonal, for giving this wonderful opening remarks. As Sonal said, we are trying to groom the young chartered accountant. So, welcome to Sonal for this CASA family. She is first time delivering us webinar. Thank you. This platform, and always welcome to you for this. And other members also, you can participate as a speaker, as a moderator whenever you wish. आपको जब भी लगे कि किसी टॉपिक पर डेलिब्रेट करना है तो वी हैव द सीजन फैकल्टी एंड वी आर ऑल्सो गिवन द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द वेरियस टॉपिक, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं कि नए नए जो टॉपिक हमारे लेटेस्ट टॉपिक हैं उस पर प्रोग्राम किए जाएं, सो डैट हम उस नॉलेज भी हमारी जब तक हमारी अच्छी नॉलेज नहीं होगी तब तक हम अपने क्लाइंट को अच्छे से एड्रेस नहीं कर सकते। आज हमारा वेबिनार भी ऐसे ही टॉपिक पर है, क्योंकि हमारे पास कई तरह की इस तरह की क्वेरीज आ रही थी कि एनपीओ के रिन्यूअल, टैक्सेशन एंड ऑडिट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं। तो हमने सर से बात करी, और वेद मित्तल सर, जैसा कि जब भी बात करो ना, ऑलवेज रेडी टू गिव टाइम। सो स्पेशल थैंक्स टू वेद सर फॉर गिविंग टाइम टू अवर मेंबर्स एट लार्ज। And one more information, we are celebrating uh, 15 year of this CASA. So 6 September, we are celebrating a big program where Kapil Goyal ji and Grees Ahuja ji, technical session expert, and our Honorable President of ICI, and CA Ashok Goyal ji, MLA from Delhi Model Town विधान सभा। सो ऑल फैकल्टी आर ज्वाइनिंग। सो आई रिक्वेस्ट कि जो लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, 6 तारीख को शाम 4:30 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा टिल द डिनर। सो एवरीवन रिक्वेस्टेड एंड एवरीवन इनवाइटेड इन दिस प्रोग्राम, सो काइंडली ज्वाइन अस। नाउ आई रिक्वेस्ट सोनल टू टेक फॉरवर्ड।
Now I would like to walk you through the flow of the webinar, which will be the session will begin with the CA Ved Mittal ji's presentation. This will be followed by an interactive Q&A session. So we encourage all participants to note down their queries and share them in the chat box. We look forward to an insightful and engaging session ahead. Without further delay, let us welcome our speaker for the day. Over to you, sir. Thank you, Sonal. Thank you, Sumit ji, giving this opportunity to today's. Now I just यस सर। is it सर visible? विजिबल है सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसे कि हम एनपीओ की बात करते हैं, तो अब मैं एनपीओ का थोड़ा सा बैकग्राउंड वी विल डिस्कस हियर। 1 अप्रैल 2021 को लॉ चेंज हुआ था। लॉ में क्या था कि जो ऑलरेडी एनपीओ रजिस्टर्ड हैं, एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो या सेक्शन इन कंपनी हो, जिनका इनकम टैक्स में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था या अप्रूवल था। रजिस्ट्रेशन मींस 12 में रजिस्टर्ड थे, या 80G में उनका अप्रूवल था, या 1023C में था, या सेक्शन 35 में था, उनको दोबारा से अपने आप को रजिस्टर कराना था। तो हम सब ने ध्यान हो कि 1 अप्रैल 2021 के बाद जिसकी विंडो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ओपन हुई थी, 4 टाइम शायद लगभग ओपन हुई थी, तो हमने फॉर्म नंबर 10A फाइल किया था फॉर द रिन्यूअल फॉर 5 ईयर। तो उसके बाद में फिर हम सबके पास में बाई सीपीसी को फाइल किया था, सबके पास में फॉर्म नंबर 10AC में असेसमेंट ईयर 2026-27 तक सबके पास में रजिस्ट्रेशन आ गई थे। असेसमेंट ईयर 26-27 तक के लिए। अब लॉ में एक प्रोविजन ये था कि जिनके पास में 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन आ गया, उनको फर्दर दोबारा से अपने आप को 5 साल या 10 साल के लिए रजिस्टर कराना है दोबारा से। पहले क्या था, 1 अप्रैल 2021 से पहले कि यदि मैंने 12AA लिया या टीजी लिया, वो लाइफ टाइम होता था, जब तक कि इनकम टैक्स में कोई सो कॉस्ट नोटिस करके हमारा कैंसिल ना कर दे। 2021 में चूंकि लॉ चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ कि हर एक 5 साल में आपको अपने आप को रिन्यूअल कराना है। तो अब जो मैंने रिन्यूअल कराया था फॉर्म नंबर 10A फाइल करके, मेरे पास में 10AC आया जिसमें लिख रहा है असेसमेंट ईयर 2026-27 तक आपको एप्लीकेबल है। फर्दर लॉ में क्या था कि अगर आपके पास 5 साल में है तो 5 साल खत्म मतलब एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 6 मंथ बिफोर दोबारा से आपको फाइल करना है। तो मेरे पास में अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है या अप्रूवल है वो मार्च 2026 तक है। अब मार्च 2026 से 6 मंथ बिफोर मीन्स 30 सितंबर 2025, मीन्स 30 सितंबर 2025 से पहले मुझे दोबारा से फॉर्म नंबर 10A भी फाइल करना है फॉर फर्दर 5 ईयर। अब पहला ये क्वेश्चन आता है, क्या लॉ में ये चेंज आ गया था इस बार के पिछले साल के बजट में क्या चेंज था कि जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, जिनकी ग्रॉस रिसीव 5 करोड़ से कम है, उनको फर्दर 10 साल के लिए मिलेगा। जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा उनको 5 साल के लिए मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि यदि मेरा पिछले 2 साल में टर्नओवर या ग्रॉस रिसीव 5 करोड़ से कम है, क्या मुझे ऑटोमेटिकली 5 साल के लिए फर्दर मिल जाएगा? आंसर इज नो। लॉ क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद मुझे दोबारा से फाइल करना है। जब मैं फाइल करूंगा तो मुझे तब मिलेगा 5 साल का या 10 साल का। तो ये बड़ा क्वेश्चन था कि साहब अब तो 5 साल के लिए मुझे बाई डिफॉल्ट मिल जाएगा। बाई डिफॉल्ट नहीं मिलेगा, मुझे रिन्यूअल फाइल करना है। रिन्यूअल के आधार पर वो देखेंगे मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है या ज्यादा है। पिछले 2 साल में यदि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो मुझे अब मैं जो फाइल करूंगा अब मुझे 10 साल के लिए मिलेगा। सर 80G ये और पीपीटी 12A। आगे नहीं बढ़ी है? नहीं, अभी तो मैं ओरली बोल रहा हूँ ओके आपको। ओके ओके। अभी तो मैं ओरली ये डिस्कस कर रहा यस हूँ यस, ओके ओके। बैकग्राउंड को। यस यस। तो ये पहला क्वेश्चन था कि मुझे फाइल करना, हाँ मुझे कंपलसरी फाइल करना है यदि मेरे पास में असेसमेंट है 26-27 तक के लिए फॉर्म 10AC आ चुका है। अब मुझे 30 सितंबर से पहले पहले दोबारा से फर्दर रिन्यूअल फाइल करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब बजट में, जैसे मैंने कहा कि बजट में चेंज आ गया कि अगर मैंने 5 करोड़ से कम है तो मुझे 10 साल के लिए रिन्यूअल मिलेगा, और 5 करोड़ से ज्यादा तो फर्दर रिन्यूअल मुझे 5 साल के लिए मिलेगा।
तीसरा इसमें चेंज आया बजट में, क्योंकि पहले क्या था, 10, 23, C, 4, 5, 6 और 6 से 4 सेक्शन हुआ करते थे, जिसमें कि पहले भी सेम प्रोसेस है कि आपको फॉर्म 10A फाइल करना था, फिर 10E भी करना है। चूंकि इस बार के बजट में इन्होंने क्या कर दिया कि ये जो सेक्शन है ये 12AA में मर्ज कर दिए। मीन्स नटसेल में यह हुआ कि यदि कोई रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल मेरे पास में 10, 23, C, 4, 5, 6 से में हाँ पहले, अब मुझे फर्दर वो फाइल करना है 12AA में फाइल करना है, क्योंकि ये सारे सेक्शन, 4 सेक्शन जो है 10, 23, C, 4, 5, 6 और 6 से अब ये खत्म हो गए 1 अक्टूबर 2024 से, इनकी वैलिडिटी खत्म हो गई। मींस अगर मेरे पास में पुराना रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल 10, 23, C, 4, 5, 6 से में था, अब मुझे दोबारा जो फाइल करना है वो 12AA में करना है। ये तो मेरी बैकग्राउंड थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अब मैं अपनी पीपीटी पर चलता हूँ। अब मुझे 10AB जो फाइल करना है वो 3 सिचुएशन में फाइल करना है, ओनली 3 सिचुएशन। पहला सिचुएशन कि मेरे पास में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन था असेसमेंट या 26-27 तक। अच्छा, इसमें भी एक थोड़ा सा आया था कि जब हमने शुरू में 1/4/2021 में जब फाइल किए थे, तो स्टार्टिंग में जो उन्होंने फॉर्म 10AC भेजा था उसमें कुछ में प्रोविजनल वर्ल्ड था, बाद में फिर प्रोविजनल वर्ल्ड हट गया। मींस अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि हमारा यदि 10AC में अप टू द वैलिडिटी असेसमेंट ईयर 26-27 तक है, तो हमें 30 सितंबर 2025 से पहले पहले दोबारा से फॉर्म 10AB फाइल करना है, जिसको मैं वर्ल्ड करूंगा रिन्यूअल। तो एक तो रिन्यूअल के केस में मुझे 10AB फाइल करना है। दूसरा ये था कि 1/4/2021 को लॉ ये चेंज हो गया था, अब रजिस्ट्रेशन दो तरह के मिलेंगे, एक प्रोविजनल एक रिन्यूअल। ठीक है, रिन्यूअल का मतलब है रेगुलर। तो दो तरह के मुझे रजिस्ट्रेशन मिलने लगे, एक तो प्रोविजनल और दूसरा रेगुलर। प्रोविजनल तब लिया जाता है कि यदि मेरे पास में नया ट्रस्ट है या पुराना भी ट्रस्ट है, लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी भी मेरी स्टार्ट है, लेकिन उससे पहले मैंने कभी 12AA या ATG में अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। प्रोविजनल की जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम 3 साल की, या यदि मेरी चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है तो विद इन 6 मंथ मुझे दोबारा से रेगुलर के लिए फाइल करना है। तो इस केस में भी मुझे फॉर्म नंबर 10AB फाइल करना है। तीसरी सिचुएशन में आती है यदि मेरे ऑब्जेक्टिव में कोई मोडिफिकेशन है। मोडिफिकेशन का मतलब है जैसे अभी मेरे बाई लॉज में है एजुकेशन एक्टिविटी, अब मैं स्विच ओवर करना चाह रहा हूँ मेडिकल में या योगा में, तो ये मेरे मेन ऑब्जेक्टिव में चेंज हो गया। यदि मैंने मेन ऑब्जेक्टिव में किसी तरह का चेंज हुआ है, तो इसके लिए भी मुझे फॉर्म 10AB फाइल करना है। अब नट सेल में फॉर्म नंबर 10AB 3 सिचुएशन में फाइल करना है। पहला, मेरे पास में ऑलरेडी 26-27 तक के लिए रजिस्ट्रेशन है, मुझे रिन्यूअल फाइल करना है फॉर फर्दर 5 ईयर और 10 ईयर। मेरे पास में प्रोविजन रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजन रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 3 साल, या मेरी एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है विद इन 6 मंथ, मुझे दोबारा से रेगुलर के लिए फाइल करना है फॉर्म नंबर 10AB, उसमें भी 10AB फाइल करना है। या मेरे ऑब्जेक्टिव में कोई मोडिफिकेशन हुआ है, तो मोडिफिकेशन के केस में भी विद इन 30 डेज मुझे दोबारा से 10AB फाइल करना है। ये 3 सिचुएशन में 10AB फाइल करना है। अब देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे कहा यदि फॉर द अच्छा, फोर्थ वन सिचुएशन और हो गई इसमें जो इन्होंने अप्रैल 2023 में चेंज किया था, एक ही है। सपोज मेरे पास में कोई ऑलरेडी नया ट्रस्ट है या पुराना ट्रस्ट है, लेकिन उससे पहले मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो अब इन्होंने किया कर दिया है कि अब आपको प्रोविजनल लेने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रेगुलर के लिए भी फाइल कर सकते हैं। तो अब अल्टीमेटली 4 सिचुएशन में मुझे 10AB फाइल करना है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा है। पहला, initial registration fresh application, the charitable activities has already started but the organizer had not availed any benefit under section 12A or 12AB or 8TG of the income tax set prior it। मतलब इससे पहले मैंने कभी, मेरे पास में कोई ट्रस्ट है चाहे पुराना है या नया है, मेरी चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे अब प्रोविजन लेने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट रेगुलर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ फॉर द आफ्टर द फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर 10AB। सेकंड सिचुएशन, रिन्यूअल और एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन। रिन्यूअल का मतलब है मेरे पास में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है असेसमेंट के 26-27 तक के लिए, और मुझे फर्दर रिन्यूअल फाइल करना है फॉर फर्दर 5 ईयर और 10 ईयर, एट लीस्ट 6 मंथ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द करंट रजिस्ट्रेशन। एक्सपायरी मीन्स, क्योंकि
असेसमेंट या 26-27 का मतलब होगा फाइनेंशियल ईयर 25-26। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का मतलब है 6 मंथ बिफोर मी, 30 सितंबर 2025 से पहले पहले मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन फाइल करना है। थर्ड वन आ गया कि मेरे पास में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है जिसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है, मुझे दोबारा से फर्दर फाइल करना है 10 AB, और मैंने कोई मोडिफिकेशन ऑब्जेक्टिव में किया हुआ है। तो इन चार सिचुएशन में मुझे फॉर्म नंबर 10AB फाइल करना है। अब 10 AB के लिए, अच्छा 10 AB मुझे दो फाइल करने हैं, 8TG का अलग फाइल करना है, 12AA का अलग फाइल करना है। पहले मैं 12AA का फाइल करूंगा, फिर मैं 8TG का फाइल करूंगा। चूंकि अब इसमें 1023C456 से खत्म हो गए तो इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। और फॉर्म नंबर सेक्शन 35 के लिए भी मुझे फाइल करना है, मीन्स 3 सेक्शन के लिए मुझे 10 AB फाइल करना है, 12AA या 12AB, 8TG और सेक्शन 35। अब लॉ ये कहता है कि मुझे बिफोर 6 मंथ प्रायर करना है। सपोज आज की डेट है 1 सितंबर, इसको मैं आर्बिट्ररी मान लेता हूँ 15 अक्टूबर 2025 की डेट में आज मैं बैठा हूँ। लॉ कहता है कि आपको 6 मंथ बिफोर फाइल करना है, मीन 30 सितंबर को मुझे फाइल करना है, और 30 सितंबर तक मैं फाइल नहीं कर पाया। तो मैं क्या करना है, अब जो फाइल होगा 30 सितंबर के बाद वो होगा। अब इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, कंडोनेशन, ओरिजिनल। यदि मैं 30 सितंबर से पहले पहले फाइल करता हूं तो मुझे ओरिजिनल फाइल करना है, और 30 सितंबर के बाद यदि मैं फाइल करूंगा तो वो कंडोनेशन के साथ फाइल करूंगा। और कंडोनेशन में, इसमें कंडोनेशन जैसी आप करेंगे तो उसमें एक लेटर की कॉपी मांगेगा कि आप लेट क्यों हुए, तो उसमें रीजन देना पड़ेगा आपको कि लेट में इसलिए हुआ, रीजन के साथ में फाइल हो जाएगा। नेक्स्ट आती है असेसमेंट ईयर। चूंकि मेरे पास में रजिस्ट्रेशन असेसमेंट ईयर 26-27 तक के लिए है, अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ 27-28 के लिए, तो मुझे यहाँ पर चूज करना है असेसमेंट ईयर 27-28। अब इसमें की पॉइंट क्या है, जब मैं फॉर्म 10 EB फाइल करूंगा तो ये चार पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला है इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन अदर रजिस्ट्रेशन डिटेल की परसेंट डिटेल, सेकंड इज ऑपरेशनल डिटेल, थर्ड वन इज डिटेल ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इनकम एंड रिलीजियस एक्टिविटी, फोर्थ वन इज अटैचमेंट एंड वेरिफिकेशन। जब हम इसकी स्क्रीन देखेंगे तो ये चार तरह के, ये जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, अगर मैंने सबमिट कर दिया तो यहाँ लिखा जाएगा ऑलरेडी फुल। ये चारों चीज हैं। जब हम सारी चीजों को सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद में फिर हम उसका बोलेंगे ड्राफ्ट कॉपी देखेंगे। ड्राफ्ट कॉपी में ये जो जो हमने भरा हुआ है इसको दोबारा से देख लें, अगर ड्राफ्ट कॉपी में कुछ चेंज है तो हम चेंज भी कर सकते हैं दोबारा से। चेंज कैसे करेंगे, फर्दर इससे पहली साइट पर जाएंगे, दोबारा ये क्लिक करेंगे, वो पोर्शन दोबारा खुल जाएगा, दोबारा फिलअप करेंगे, उसके बाद में दोबारा उसको अपना सही हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले आती है कि जो मुझे सेक्शन कोड चूज करना है। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कुछ असेसी ने सेक्शन कोड गलत चूज कर लिए थे, तो डिपार्टमेंट ने मना कर दिया था कि आप सेक्शन कोड, तो हमें विड्रॉल करना पड़ा, फिर दोबारा से चेंज कर। अब इन सेक्शन कोड को ध्यान में रखेंगे। यदि मेरे पास में असेसमेंट 26-27 तक के लिए रजिस्ट्रेशन है, रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर की। रेगुलर का मतलब है कि मैंने 1 अप्रैल, अच्छा दो तरह के रेगुलर है मेरे पास में। पहला रेगुलर है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले मेरे पास था, मैंने 10A फाइल किया, 10AC आ गया, वो भी रेगुलर है। या मेरे पास में पहले प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन था, प्रोविजन के बाद में फिर मैंने अपने आप को रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करा लिया, रिन्यूअल भी हो गया, तो उस समय इस समय मेरे पास में जो है वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन है। तो इन दो सिचुएशन में रेगुलर रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, उसका मुझे रिन्यूअल कराना है। अब रिन्यूअल कराने में दो कोड इसमें अप्लाइड है। यदि मैं 12AA फाइल कर रहा हूं तो मैं डालूंगा 01 सेक्शन को, और मैं यदि 80G फाइल करूंगा तो मैं डालूंगा 13 मीन्स 30। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सेक्शन कोड को 01 और 13, 01 12AA के लिए और 13 80G के लिए। मैं जब मैं करूंगा कि मेरे पास में ऑलरेडी पुराना रेगुलर रजिस्ट्रेशन है, मैं फर्दर 5 ईयर या 10 ईयर के लिए दोबारा से फाइल कर रहा हूं। दूसरा सेक्शन कोड, मेरे पास में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, 3 साल का मेरे पास प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन है, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से मैं अपने आप को रेगुलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। रेगुलर मीन्स फर्दर 5 साल या 10 साल के लिए कर रहा हूँ।
तो अगर मैं टॉयल डबल ए के लिए कर रहा हूं तो उसमें सेक्शन कोड 02 है, और 80G के लिए कर रहा हूं तो उसमें सेक्शन कोड है 1414। 1414। तीसरा आ गया फॉर हु हैव इनऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन। इनऑपरेटिव, ये अब ये सेक्शन कोड खत्म हो गया। ये इनऑपरेटिव का पहले क्या था कि अगर मेरे पास में 1023C4566 है और 12AA भी है, तो मुझे एक को अपने आप को इनऑपरेटिव करना पड़ता था। ये उसके लिए है जो कि आज की डेट में इसकी वैलिडिटी नहीं है। चूंकि ये फॉर्म में आ रहा है इसलिए वी हैव टू शो इट। नेक्स्ट आ गया कि यदि मुझे अपने ऑब्जेक्टिव में कोई मॉडिफिकेशन किया है तो विद इन 30 डेज फर्दर मुझे 10AB फाइल करना है, तो उसका सेक्शन कोड है 04। नेक्स्ट आ गया, यदि मेरे पास में ऑलरेडी एनपीओ है, जो ऑलरेडी स्टार्ट है, उसकी चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट है, चाहे नया है चाहे पुराना है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी 12AA 80G का बेनिफिट नहीं लिया। मीन्स आज से पहले मेरे पास में ना तो 12AA है उसका, ना 80G है। यदि अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन, मेरे पास में बहुत पुराना ट्रस्ट है, अभी तक मैं ITR 5 फाइल कर रहा हूँ, अभी तक मैंने 12AA नहीं फाइल किया, चैरिटेबल एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट है। तो अभी तक क्या था, अभी से मतलब ये लास्ट ईयर तक क्या था, पहले मुझे प्रोविजनल फाइल करना पड़ता था, फिर मुझे रेगुलर फाइल करना है। अब इन्होंने एक चेंज कर दिया कि आप डायरेक्टली रेगुलर के लिए फाइल कर सकते हैं, मुझे प्रोविजनल लेने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके लिए सेक्शन कोड है 04A 12AA के लिए, और 80G के लिए 14A। ये जब मैं फाइल करता हूँ फॉर्म 10AB तो उसमें सेक्शन कोड आते हैं। इसकी प्रीवियसली मैं भी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आता है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में फॉर्म 10A फाइल किया हुआ, मोरोलेस वही सारे डॉक्यूमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है जो हमें ध्यान में करना है। पहला, पैन कार्ड लगाना है, सबको पता है। तस्दीक वाइलॉस की कॉपी, ये जितनी भी कॉपी, जितने भी पेपर लगाएंगे सब सेल्फ सर्टिफाइड लगाएंगे, सारे के सारे। इसके बाद में प्रीवियस जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म 10AC वो लगाना है। गवर्निंग बॉडी का क्या करना चाहिए कि जो आपका एनपीओ है, ऐसा हो सकता है कि गवर्निंग बॉडी में कुछ नाम कुछ और है और आज की डेट में गवर्निंग बॉडी कुछ और है, तो इट इज बेटर कि असेसी को बोला जाए कि आप अपने लेटर हेड पर आज की डेट में जो आपकी गवर्निंग बॉडी है उसकी एक लिस्ट दे दे। लिस्ट में क्या आना, नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका मेल आईडी, और उसके पास से पोस्ट क्या है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर या एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये उससे लेटर हेड पर ले लें, क्योंकि जब हम फॉर्म फाइल करेंगे तो सारी चीज हमें फाइल करनी है इंडिविजुअली फॉर्म में। तो हमारे पास में यदि रेडीमेड अवेलेबल पोजीशन है तो हम उसको आराम से वी कैन फिल इट। इसके बाद में लास्ट 3 ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट। अब प्रॉब्लम आती है, आज की डेट हम सितंबर में बैठे हैं, सितंबर आ गए, लेकिन अभी भी हमारे पास में मार्च 25 की बैलेंस शीट ऑडिटेड नहीं है। तो उसमें दो ऑप्शन है, या तो इसकी प्रोविजनल लगा दें, या मार्च 24 तक आप केवल मार्च 24 तक का डाटा प्रोवाइड कर दें, 25 की अभी ना दें। क्योंकि आज की डेट में यदि हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो इसका विद इन 6 मंथ, मतलब 6 महीने का पूरा टाइम लग जाएगा। तो 6 महीने का मतलब अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ या आफ्टर, मतलब अक्टूबर या नवंबर तक हमारी इस साल की भी ऑडिटर हो जाएगी, तो हम फर्दर बाद में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि या तो 25 की प्रोविजनल लगाएं या बिल्कुल ना लगाएं 25 की, केवल 24, 22, 23, 24 की 3 साल की बैलेंस शीट लगा के डाटा भर के वो सबमिट कर दें। इसके बाद में एक बैंक डिटेल उन्होंने मांगा है, तो बैंक डिटेल से बेटर है कि एक असेसी से ब्लैंक चेक की आप फोटोकॉपी ले लें, उसको कैंसिल करके वो उसके साथ में लगा दें। क्योंकि अब इस साल हमें फॉर्म 10AB में बैंक की डिटेल भी फाइल करनी है। बैंक की डिटेल सबको पता है, अकाउंट नंबर क्या है, उसका IFSC कोड क्या है, ये सब डिटेल्स है। तो इट इज बेटर कि गलती ना हो, आप एक ब्लैंक चेक की एक उनसे कॉपी ले लें और वो चेक की कॉपी इसके साथ में अटैच करें। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि यदि एनपीओ के पास में कोई लैंड एंड बिल्डिंग है पुरानी कोई, या जो बुक्स में आ रही है, तो उसकी डिटेल भी देना है। डिटेल में ये कई इंफॉर्मेशन मांग रहा है। पहला, उसका साइज क्या है, कितना एरिया है उसका। दूसरा, वो कब खरीदी है आपने, किस साल में खरीदी। और तीसरा है कि कितनी की वैल्यू है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है प्रैक्टिकली, जैसे मैंने बैलेंस शीट में, मेरे पास में 3 असेट्स हैं, मेरी बैलेंस शीट में 3 लैंड है सपोज,
तो यहाँ हमें तीनों की डिटेल देनी है। या सपोज मेरे पास में एक ही लैंड है। अब मैंने एसएससी को कहा भाई आप एक बार को डॉक्यूमेंट भेजें। डॉक्यूमेंट में सपोज वैल्यू लिख रही है 15 लाख रुपए की, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है 20 लाख रुपए की। तो यहाँ एडवाइजेबल है कि वैल्यू जो हमें लिखनी है एज पर बैलेंस शीट लिखनी है। हो सकता है 15 की हमने प्रॉपर्टी खरीदी हो, उसके बाद में कुछ उसमें एडिशन हो गया हो, कुछ उसमें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वगैरह हो गया हो लैंड के केस में। तो हमें यहाँ लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू जो देनी है वो एज पर बैलेंस शीट देनी है। और कौन से साल में खरीदी वो ईयर देना है। कितना आपकी उसका एड्रेस क्या है, खसरा नंबर, खतौनी नंबर, एड्रेस, पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ में वो हमें सबमिट करना है। इसके बाद एक हमें जो हमने पिछले 3 साल में जो भी चैरिटेबल एक्टिविटीज की हैं उसके एक नोट्स बना लें। और नोट्स बना लें एक्टिविटीज वाइज। जैसे मेरे एजुकेशन है तो मेरे एजुकेशन में क्या चल रहा है, मेरा स्कूल चल रहा है, स्कूल का ये नाम है, यहाँ पर चल रहा है, ये सीबीएसई से एफिलेटेड है या और किसी से एफिलेटेड है, पिछले 3 साल में ये फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक का है। ये सारा एक आधा पेज का एक थोड़ा राइटअप लिख दें। तो उससे क्या होता है कि जब असेसिंग ऑफिसर जब हमें रजिस्ट्रेशन देता है तो उसका माइंड सेट हो जाता है कि भाई ये एजुकेशन का ट्रस्ट है और उसमें एजुकेशन में बस हमें इसकी बैलेंस शीट देखनी है, तो उसके लिए थोड़ा सा जस्टिफाइड हो जाता है। ये सारे पेपर हमें लगाने हैं। लगाने के बाद में ये सारे पेपर पहले तो हमें ऑनलाइन सबमिट करने हैं। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद में अब ये फर्दर प्रैक्टिकल इशू क्या आता है कि जब हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं, सपोज हमने ऑनलाइन सबमिट कर दी 100 पेज, और जब वहां फाइल पहुंचती है तो कुछ पेजों में प्रिंटिंग सही नहीं होती। दूसरा ये एक शॉर्ट ही नहीं है कि 100 के 100 पेज की प्रिंटिंग वहां आपकी फाइल में लगी होगी। क्योंकि जब सीआईटी एग्जामिशन जब रजिस्ट्रेशन देते हैं तो पूरी फाइल को फिजिकल चेक करते हैं। पहले वहां जो इंस्पेक्टर आईटी हो वो चेक करेंगे। चेक करने के बाद में फिर वो रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन के बाद में सीआईटी एग्जामिशन फिजिकल फाइल को चेक करते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैंने 100 पेज लगाए, वहां उन्होंने प्रिंटिंग में सब वो 15 पेज की प्रिंटिंग अच्छी नहीं आ रही या 20 पेज की उन्होंने प्रिंटिंग नहीं ली, तो अल्टीमेटली वहां जो इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन सीआईटी एग्जामिनेशन के बाद में जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, तो सीआईटी एग्जामिनेशन कहेंगे साहब आपने पूरी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट नहीं की, क्यों ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। तो इट इज एडवाइजेबल जो हमने पेपर सबमिट किए हैं ऑनलाइन उनकी आप प्रॉपरली एक फिजिकल कॉपी प्रिंट करें। फिजिकल कॉपी को जिस दिन आपकी हियरिंग हो उस हियरिंग पर फिजिकल कॉपी में सबमिट करके फाइल में लगवा दें। क्योंकि यही कम्युनिकेशन गैप हमने देखा है प्रैक्टिकली कि हम थोड़ा सा आलस करके वजह से हम वहाँ डिपार्टमेंट नहीं जाते, और डिपार्टमेंट ना जाने की वजह से हमारे रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है आपका। वहाँ जो इंस्पेक्टर बैठे हैं, आईटीओ बैठे हैं, उनके पास जाएं, उनको सबमिट करें, उनकी क्वेरी का मीट आउट करें, उनकी कोई फर्दर क्वेरी है उसका जवाब दें। और जवाब भी जो भी दें वहाँ फिजिकल सबमिट जरूर करा दें, जिससे आपकी फाइल प्रॉपरली बन जाए। और जब सीआईटी एग्जामिशन आपकी फाइल को देखें तो उन्हें लगे हाँ पूरी इंफॉर्मेशन आई हुई है, तो उसमें बेटर रहता है। और फिर चांसेस कम रहते हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें। तो ये तो पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है फॉर्म नंबर फाइल करने का। अब ये जो फाइल करने के बाद में ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में आ जाती है। आज ये मैंने प्रैक्टिकली किसी का फाइल किया था तो उसकी मैंने कॉपी इसमें लगाई हुई है डिटेल। ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद में ये अटैचमेंट आ गए सारे। इसके बाद में फिर हमें फाइल करना है। दो ऑप्शन है, ओटीपी से या डिजिटल से, जो भी आपको है उससे अपना फाइल हो जाएंगे। फाइल करने के बाद में एक्नॉलेजमेंट आपके पास आ जाएगी। एक्नॉलेजमेंट आने के बाद में जैसे मैंने बताया था फिजिकल सारे पेपर की कॉपी कराएं। और कॉपी करा के अब जैसे ही हम सबमिट करेंगे, सबमिट करने के विद इन मेरे हिसाब से 20 या 25 दिन के बाद में एक वहां से लेटर आएगा कि आपने जो पेपर सबमिट करे हैं वो पेपर दोबारा मंगाएंगे कि आपने टच डीड नहीं दी। वो बोलेंगे ये लगाइए, ये लिया, ये लिया, ये, और एक पर्टिकुलर डेट दे देंगे, इस डेट में आप आए। उस डेट में आप जाएं पावर अटॉर्नी के साथ में एसएससी की, और जो पेपर आपने सबमिट किए हैं उनकी प्रैक्टिकली फिजिकल कॉपी वहाँ सबमिट करें। और उसके बाद में फिर वो अब क्या है इसकी, जैसे पहली डेट विद इन 1 मंथ आ जाती है। उसके बाद में फिर दूसरी डेट आएगी 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद में। और लास्ट का जब 6 महीना 6 6 मंथ होगा
उसमें फिर ये फटाफट जल्दी करते हैं। यदि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, आप इंस्पेक्टर साहब से मिल चुके हैं, आपका कम्युनिकेशन हो गया है, तो आपका रजिस्ट्रेशन मिलने में आसानी रहती है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम रहती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यदि आपने रजिस्ट्रेशन फाइल किया, आप सोच रहे हैं मुझे जैसे सीपीसी आया वैसे ही आ जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको जाना है, वहाँ सबमिट करना है, फिजिकल मिलना है। और मिलने के बाद अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है कि यदि आपने जैसे नहीं गए तो नहीं गए, तो आपका रजिस्ट्रेशन मान के चले, मतलब मेरिट के बेस पे नहीं होता। अरे यदि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो कैंसिल होने पे दो नुकसान है। 115 टीडी की तलवार आपके ऊपर लटक जाएगी, और दूसरा ये है फिर आपको रिमांड बैक कराने के लिए आईटीटी जाना पड़ेगा। और फिर आईटीटी में वो क्या करेंगे, दोबारा से रिमांड बैक करेंगे कि जाओ आप दोबारा से सीआईटी एग्जामिनेशन के पास जाओ। और इसमें आपका 5 6 8 महीने 10 महीने निकल जाते हैं, जो कि अपने लिए हार्मफुल है और एसएससी के लिए भी हार्मफुल है। तो जो मेहनत करनी है हमें स्टार्टिंग में ही करनी है। पेपर सबमिट करें, फिजिकल कॉपी लें, वहाँ सबमिट करें, और उसके बाद ही करें। ये ना सोचें कि मैंने पेपर ऑनलाइन सबमिट कर दिए तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब बॉल जो है वो डिपार्टमेंट के कोर्ट में है, चाहे वो दे ना दे। ऐसी सोच हमें हटानी पड़ेगी। सबमिट करें, फिजिकल जाएं, और उसके बाद में आराम से जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन पूरा करके सबमिट करें। अब इसे फॉर्म 10 में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेता सर अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है आई थिंक, बट स्टिल मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पोस्ट कर दीजिए चैट बॉक्स में। हूँ। किसी का इससे रिलेटेड, फॉर्म 10 से रिलेटेड, अब मैंने रिन्यूअल, अब मैं नटसेल में 2 मिनट में खत्म करता हूँ। हम्म। हम्म। जो असेसी जिनके पास में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आ चुका है फॉर्म 10 में, हमें 30 सितंबर 2025 से पहले पहले दोबारा से उसको रिन्यूअल फाइल करना है फॉर्म नंबर 10 में। ओके। ये सीरियल नंबर सर, सीरियल नंबर 23 क्या था सर? एक बार हिमांशु पांडे जी ने पूछा सीरियल नंबर 23। 23 में ये जब मैं फाइल करता हूँ तो उसमें ये डॉक्यूमेंट वो मांगते हैं, ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं बेसिकली। सबसे पहले है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड। जैसे मेरा कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट डीड की कॉपी होगी पहला। तो जो ट्रस्ट डीड की कॉपी, उसकी फोटो कॉपी कराएं। फोटो कॉपी कराने के बाद सेल्फ सर्टिफाई करें, फिर स्कैनिंग करें। स्कैनिंग करते समय क्या रहता है, हो सकता है साइज ज्यादा हो तो उसको फिर दोबारा से जिप फाइल करके दोबारा से साइज कम करें, ये प्रॉब्लम आएगी इसमें। कंप्रेस पीडीएफ कर सकते कंप्रेस हैं। कर लेता है। दूसरा है सेल्फ सर्टिफाई कॉपी ऑफ द एविडेंस। जो भी हम, यदि सोसाइटी है तो सोसाइटी के केस में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। अगर कंपनी सेक्शन 8 है तो उसमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आता है। लेकिन ट्रस्ट के केस में वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कोई नहीं होता। जो हमारे ट्रस्ट डीड का बैक पेज है, जिसमें आपने फोटो वगैरह खिंचवाए होंगे, जिसमें रजिस्ट्रार ने लिखा होगा कि आपका ट्रस्ट इस डेट में रजिस्टर्ड किया जाता है, ये उसका खसरा नंबर, खतौनी नंबर है। तो अल्टीमेटली क्या है कि उसका जो बैक पेज है उसकी एक सिंगल कॉपी करें, सिंगल कॉपी। और सिंगल कॉपी करके वो आपका सेकंड वाले में काम आ जाएगा, सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट एविडेंस क्रिएशन ऑफ द ट्रस्ट। तो राइट। फर्स्ट में ट्रस्टीड या सोसाइटी के बाइलॉज आ गए, सेकंड में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, या ट्रस्ट के केस में सेकंड का जो बैक पेज है जिसमें फोटो आपके लगे हुए होंगे फोटो कॉपी में, वो अपना आ गया। तीसरा आ गया सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्ट्रार, फर्म, सोसाइटी और पब्लिक ट्रस्ट। ये सेम चीज एक्चुअल में क्या है, ये सेम चीज है ना, 2 बार मांग रहा है। तो यहाँ भी सेम चीज वही लगाते हैं जो सिंगल पेज मैंने आपको बोला, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। कुछ लोग इसमें बाई लॉस को दोबारा लगा देते हैं। फोर्थ वन है सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी तो रजिस्ट्रेशन। यदि आपके पास में एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन है तो एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगाना है। नेक्स्ट आ गया सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्रांट रजिस्ट्रेशन। आपके पास में फॉर्म नंबर 10 होगा, पिछला वाला पुराना, उसकी कॉपी इसमें लगानी है। नेक्स्ट आ गया सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द रिजेक्शन ऑर्डर। यदि आपके पास में कोई रिजेक्शन ऑर्डर है उसकी कॉपी लगा दें, और साथ साथ यदि मैं आईटीटी गया हुआ हूँ तो आईटीटी की भी कॉपी उसमें लगेगी, एक्नॉलेजमेंट कि मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था। और चूंकि अभी मेरा मैटर आईटीटी में चल रहा है तो आईटीटी की कॉपी लगा दें। नेक्स्ट आ गया वेदर द ट्रस्ट और फंड हेल्ड द एप्लीकेशन एज पर द प्रोविजन। यदि इसमें क्या रहता है, इसमें
यदि मेरा ट्रस्ट है और ट्रस्ट के केस में कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूँ जो 11(4) में कवर है, तो यदि कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसका कोई राइटअप, या पिछली साल मैंने कोई बिजनेस किया हुआ है उसकी मेरी कोई टैक्स ऑडिट फाइल हुई है तो उसकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट लगेगी। इसमें बिजनेस दो तरह के होते हैं, एक 11(4)A और एक एक होता है 11(4). 11(4)A होता है इंसिडेंटल बिजनेस, जैसे मैं, मेरा कोई कॉलेज है, कॉलेज के साथ साथ मैंने कोई स्टेशनरी की दुकान वहाँ खोली हुई है, वो मेरा इंसिडेंटल हो गया। या मेरा कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी है, वो मेरी इंसिडेंटल हो गया। इंसिडेंटल के हिसाब से लॉ क्या कहता है कि आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो यहाँ वही बात कर रहा है 11(4) और 4A कि आपको यदि कोई बिजनेस एक्टिविटी है तो बिजनेस एक्टिविटी का एक थोड़ा सा राइटअप देना है और उसके बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेट हमें फाइल करने हैं, इसके साथ में आ जाएगा। 8 और 9 ये जो मैंने अभी आपसे बात की थी। अब अगर सेल्फ सर्टिफाई कॉपी ऑफ द एविडेंस अडॉप्टिंग मॉडिफिकेशन ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने कहा कि यदि आपने कोई ऑब्जेक्टिव में मॉडिफिकेशन किया हुआ है तो यहाँ उसकी नई डीट लगेगी और एक पेज का आपको राइटअप देना है कि आपने मॉडिफिकेशन क्या किया। जैसे एजुकेशन में मेडिकल में चले गए या मेडिकल के साथ में योगा भी ले लिया, तो आधे पेज का राइटअप और प्लस जो आपने नई डीट है नई डीट जो रजिस्टर कराई है वो साथ में लगेगी। सेल्फ सर्टिफाई कॉपी। अच्छा, नेक्स्ट आ गए नोट्स एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले 3 साल में एक्टिविटीज आपने क्या क्या की है, उसका नोट्स आपने लगा दिया। इसके बाद में एनी अदर के लिए अभी क्या कर रहे हैं जी, एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन भी मांग रहे हैं। एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन जितने भी हैं सबके लिए अब कंपलसरी है, तो एनजीओ रजिस्ट्रेशन की कॉपियां लगा दें, या आपको लगता है कि कुछ और भी कुछ डॉक्यूमेंट देने हैं तो अदर्स में लगा दें। अदर्स में लगाने के बाद में फाइल, जब हम फाइल करेंगे तो कुछ का साइज बड़ा होगा, उनको कंप्रेस करके दोबारा से फाइल लगाएं। फाइल करने के बाद में फिर ये ऑनलाइन आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड के बाद में वेरिफिकेशन डीएससी से या ईबीसी से, उसके बाद में एक एक्नॉलेजमेंट आपको लगेगी, उसका प्रिंट लेके फाइल में लगा दें। उसके बाद में 1 महीने विद इन 1 मंथ आपके पास में नोटिस आएगा। नोटिस में वही चीज आएंगी, लगभग 22-23 आइटम होती हैं, वही है जो हमने सबमिट की हुई हैं। वो हमें फिर दोबारा से, जैसे मैंने कहा, फिजिकल प्रिंट निकाल के उस नोटिस के साथ पावर अटॉर्नी के साथ में उस डेट में जाए और अपने जो असेसिंग ऑफिसर है उनको पास में वहां पर सबमिट करा दें। वो सबमिट वैसे आपको कोई एक्नॉलेजमेंट भी दे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं आप ऐसे छोड़ दो साइन कर ले, तो जैसा भी आपको सूट करे, लेकिन अल्टीमेटली आप एक्नॉलेजमेंट उसकी जरूर ले लें। और एक्नॉलेजमेंट के बाद तो उनसे कहोगे ये फाइल भैया हमारी फाइल में लगवा दें, तो फाइल जब बन जाती है प्रॉपरली तो सीआईटी एग्जामिशन को उसमें आसानी रहती है एग्जामिशन देने में। नाउ वी हैव कंप्लीट आवर फॉर्म नंबर 10 AB। किसी का कोई क्वेश्चन है हाँ इसमें? सर, सर कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताएं। क्विकली क्विकली कवर करेंगे सर तभी हो पाएंगे। मैं देता हूँ, बताता हूँ, मैं पढ़ता जाता हूँ। जी। सर सलोनी जी पूछ रही हैं कि माई फॉर्म 10 AB हैव बीन रिजेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑन मेरिट बेसिस। नाउ कैन आई रीफाइल द सेम और हैव नो देखिए, हाँ, ऑप्शन? देखिए क्या था। अब ये तो फॉर्म, ये अभी अभी तक अपन बात कर रहे थे रिन्यूअल कैसे फाइल करना है। हम्म। अब आपका क्वेश्चन है कि मैंने मतलब पहले प्रोविजनल फाइल किया था, प्रोविजनल के बाद में मैंने रेगुलर के लिए फाइल किया 10 AB, और वो 10 AB मेरा रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट जो हुआ है तो उसमें फॉर्म नंबर 10 AD डिपार्टमेंट ने इशू किया होगा। उस 10 AD में आपको देखना पड़ेगा उन्होंने क्या लैंग्वेज लिखी है। दो तरह की लैंग्वेज होती है जनरली। एक तो ये होता है कि आपने सबमिशंस पूरी तरह नहीं दी, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। दूसरी लैंग्वेज होती है कि आपका ये तो कैंसिल किया जाता है, साथ साथ आपका प्रोविजनल भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता है। अगर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपका प्रोविजनल भी कैंसिल हो गया तो आपको सिंपली आईटीटी जाना है। सिंपली आईटीटी जाना है और आईटीटी से अपनी बातें रखनी है। अब उसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने दिए। हो सकता है आपने डॉक्यूमेंट दिए, ऑनलाइन सबमिट किए, लेकिन उन्होंने ऑर्डर में लिख दिया कि साहब आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए। या ऑनलाइन में लिख दिया अच्छा साहब आपने 20 क्वेश्चन थे, आपने 5 क्वेश्चन का जवाब दिया। या उन्होंने लिख दिया कि आपने चैरिटेबल एक्टिविटी, आपके चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है। तो इस तरह के सारे कॉजेज होंगे। फॉर्म नंबर 10 AD में जो कॉजेज होगा उसी उसी के हिसाब से उसका रिजल्ट होगा। यदि उन्होंने लिख दिया कि आपका प्योरली कैंसिल किया जाता है प्रोविजनल के साथ में, तो आपको आईटीएटी जाना है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन कुछ सिचुएशन में आप 10 AB दोबारा से फाइल कर सकते हैं। वो डिपेंड होगा कि फॉर्म नंबर 10 AD में उन्होंने ऑर्डर में क्या लिखा है। जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्नओवर इंक्लूड डोनेशन इंटरेस्ट एंड अदर रिसीट्स आल्सो, मतलब ऑल क्रेडिट्स
from यस, the देखिए टर्नओवर का मतलब है ग्रॉस रिसीव्ड, ग्रॉस रिसीव्ड ऑफ द रेवेन्यू नेचर प्लस आपका कॉर्पस फंड। सर आई थिंक ये क्वेश्चन आंसर कर दिया आपने। व्हाट इज द कंसिक्वेंस इफ द डिपार्टमेंट डज नॉट इश्यू रिन्यूअल सर्टिफिकेट, या है ना? जी। प्लीज री एक्सप्लेन सर, प्लीज वीडियो देख लीजिएगा, री एक्सप्लेन का सर टाइम नहीं बचेगा। मेगा जी पूछ रही हैं, डज द टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल ग्रांट एंड डोनेशन यस, इंटरेस्ट? ऑल रेवेन्यू इनकम प्लस कॉर्पस फंड। करण नागपाल जी, अगर 3 साल की प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आई है तब भी 30 सितंबर से पहले 5 ईयर के लिए अप्लाई करना है सर? नहीं नहीं, देखो क्या रहता है, लॉ क्या कहता है, दो दो तरह के, एक तो आपका रेगुलर की बात करता है, एक आपकी प्रोविजनल की बात करता है। हम्म, प्रोविजनल जो मैंने फाइल किया था, फॉर्म नंबर 10A फाइल किया था, उसके हम्म, बाद 10AC मेरे पास में आ गया, उसमें भी 10AC आता है। और हम्म। उसमें प्रोविजनल लिखा हुआ है 3 साल की, इसकी वैलिडिटी 3 साल की होती है, मैक्सिमम 3 साल। या आपकी यदि चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है तो उसके विद इन 6 मंथ। यदि आपकी विद इन 6 मंथ नहीं फाइल किया तो कंडोनेशन के साथ में आप फॉर्म नंबर 10A भी फाइल कर दें। Then, Satish ji asking, where trust is very old and hold number of immovable properties, is it necessary to give complete detail or details of the last 50 years can be given? देखिए इसमें अगर अगर आपके पास में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उसमें बेटर ये है कि किसी एक प्रॉपर्टी का वहां पर लिस्ट लगा दें। बाकी जो अदर्स वाला जो कॉलम है उसमें फिर आप पूरी प्रॉपर्टी की डिटेल देते हैं। सर ट्रस्ट में रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस कैसे चेंज होगा? आई थिंक सप्लीमेंट्री डेट। रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको सप्लीमेंट्री डीड फाइल करनी पड़ती है रजिस्ट्रार के यहाँ। एक रेजोल्यूशन पास होता है, उस रेजोल्यूशन की कॉपी, सप्लीमेंट्री डीड की कॉपी। यदि सेटलर अवेलेबल है तो सेटलर जाएगा, यदि सेटलर नहीं है तो आप एक रेजोल्यूशन पास करें एग्जिस्टिंग ट्रस्टी के साथ में, और किसी एक ट्रस्टी को ऑथोराइज करें, और उसकी सप्लीमेंट्री डीड जो है, जो आपका ऑलरेडी जहां पर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है, वहां आपको दोबारा से सप्लीमेंट्री डीड रजिस्टर्ड करानी है फॉर चेंज द रजिस्टर आपका योर एड्रेस। जी इसमें आपका जो वेरी एड्रेस के लिए आपका रेंट एग्रीमेंट भी लगेगा, और जो लैंडलॉर्ड है उससे एनओसी भी लगेगी, और उसकी एमसीटी की रसीद भी लगेगी कि उसने म्युनिसिपलिटी टैक्स दे दिया है। सर हिमांशु पांड्या जी, डिटेल ऑफ एसेट लाइबिलिटी इन सीरियल नंबर 22 एंड 23, डू वी हैव टू bifurcate it between corpus and non corpus investment under section 11(5)? देखिए इसमें फॉर्मेट दे रखा है, उसी फॉर्मेट में आपको फाइल करना है। जी जैसे सोसाइटी। फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्मेट भी वही फॉर्मेट है जो बैलेंस शीट का है, कोई डिफरेंस नहीं है। सर नेक्स्ट है साहिल जी का, सोसाइटी हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA, बट इट हैज बीन फाइलिंग ITR अंडर सेक्शन 1023C 3AD, शुड दे अप्लाई फॉर रिन्यूअल अंडर सेक्शन नहीं, 12AA? देखिए हमें जो अप्लाई करना है वो 12AA या 1023C 4, 5, 6 और 6A के लिए रिन्यूअल फाइल है। अगर यदि मेरा कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसका मैं 1023C 3rd AD में बेनिफिट ले रहा हूं, तो उसका रिन्यूअल नहीं मुझे फाइल करना। राइट। Saloni ji asking, can we do trading activities under Section 8 company with no profit motive? हाँ कर सकते हैं, सेक्शन 8 कंपनी करते हैं, सेक्शन 8 कंपनी का नो प्रॉफिट मोटिव होता है। लेकिन हम इसमें कोई देखो कॉमर्शियल एक्टिविटी किसी में भी अलाउड नहीं है, चाहे वो आपकी सेक्शन 8 कंपनी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो। Yes. लेकिन इसमें 2 सबसेक्शन 15 में जो लिम है कि 20% तक अलाउड है, वही कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं जब आपका लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव है जनरल पब्लिक यूटिलिटी। संजय जी की। अदरवाइज जी। केवल इंसिडेंटल बिजनेस कर सकते हैं जो 11(4)A में कवर है। राइट। संजय जी आस्किंग, ट्रस्ट का असेसमेंट सर एज ए एओपी हुआ है तो 12A और 80G के समय क्या प्रॉब्लम फेस हो सकती है अपने को? देखिए ट्रस्ट का यदि एओपी का मतलब है कि आपका ट्रस्ट इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। हम्म, जो ट्रस्ट या सोसाइटी इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते, उनका असेसमेंट होता है एओपी में। आप तो अच्छा, एओपी में तब हो रहा है, इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन कि आपने ITR 5 फाइल की है, 5 फाइल की है तभी आपका असेसमेंट एओपी में हो रखा है। या दूसरी सिचुएशन कि आपने 13/10 में रिटर्न फाइल किया तभी भी एक आपका जो स्टेटस है वो एओपी में कन्वर्ट हो जाता है। 1310। सर अगेन, टैक्स ऑडिट, इफ टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड इफ द टर्नओवर
एक्सीड 10 करोड़, नहीं, बकाया हार्डली टैक्स। मैटर, इसमें टैक्स ऑडिट होता है बिजनेस के केस में। और हम्म। मेरी यहाँ पर बिजनेस इनकम कोई नहीं है। तो इसलिए यदि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ भी है, जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, उसका 100 करोड़ का टर्नओवर है, इवन तो उसमें मेडिकल, 44। मेडिकल सेलिंग, दवाइयां सेल हाँ, कर रहा है इवन ट्रस्ट। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना। हम्म। यदि देखो, अगर मेरा सपोज मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मेरा कोई मेडिकल कॉलेज है, उसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, हम्म। तो उस मेडिकल कॉलेज की टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB में नहीं होगी। ओके। दूसरा, यदि मैं कोई इसमें इंसिडेंटल बिजनेस करता हूँ 11(4)A में, जैसे सपोज मैंने मेडिकल के साथ साथ मेरी कोई दवाई की फैक्ट्री भी है, और उस दवाई की फैक्ट्री में मैं दवा बनाता हूँ, वो दवा जो है वो अपने कस्टमर को सेल करता हूँ, तो ये सेक्शन आ गए 11(4)A में कवर। तो 11(4)A क्या कहता है, आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, और यदि उसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, तो उसकी टैक्स ऑडिट आपको 44 AB में अलग से करानी है। ओके। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट इन मेन ऑब्जेक्ट इज filed with the registrar of society, but assessee did not get registered new MOA. देखिए, यदि आपने कोई मेमोरेंडम में, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में आपने मेमोरेंडम में चेंज कराया है। अब मेमोरेंडम में चेंज का मतलब है आपने कुछ नई नई एक्टिविटीज या नए फंक्शन, जैसे एजुकेशन, जैसे सपोज एक एजुकेशन है, एजुकेशन में आपने अभी अभी आप क्लास चला रहे हैं, या अभी आप स्कूल चला रहे हैं, ट्वेल्थ ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का। अब आपने ट्वेल्थ की जगह आपने पोस्ट ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट चला रहे हैं, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव का चेंज है जो 7 लिम में है, मेडिकल, एजुकेशन, योगा, ये जो 7 लिम में है, अगर इसमें कोई चेंज करता हूँ, तब आपको मोडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आता है, आपको दोबारा से चेंज कराना है। यदि कोई एक्टिविटी चेंज हुई है, या आपके ट्रस्टी चेंज हुई है, या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हुए हैं, तो आपकी नई डीड आपको सबमिट करनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर 10 AB। जी। वृंदा जी इज आस्किंग कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के 6 महीने के अंदर हमें फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है सर। लास्ट क्वेरी सर, वी हैव टू अप्लाई फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन ओनली बिफोर 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोविजनल। जी, लॉ ये कहता है कि मेरे पास में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मैंने ले लिया सपोज। अब प्रोविजनल, जैसे आज की हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, मैंने एक अपना ट्रस्ट बनाया 1 अप्रैल 2025 को। 1 अप्रैल 2025 को मैंने बनाया, और 3 अप्रैल 2025 को मैंने प्रोविजनल के लिए अप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, विद इन 1 वीक आपके पास में रजिस्ट्रेशन आ गया, और रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 3 साल की है। अब आज की डेट में चल रहा है 1 सितंबर, लेकिन मेरी चैरिटेबल एक्टिविटी स्टार्ट होगी 25 अगस्त को। तो मैं क्या करूंगा, 25 अगस्त से नेक्स्ट 6 महीने, मीन्स मार्च तक मुझे कभी भी फॉर्म 10 AB फाइल करना है फॉर रेगुलर के लिए। यदि मैंने 6 महीने के बाद किया, तो कंडोनेशन के साथ में फाइल करना है बिफोर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जहां तक कि मुझे रजिस्ट्रेशन मिला है। सर ओवर सर, नेक्स्ट क्वेरी के लिए सर लास्ट में ले लें सर अभी, या कंटिन्यू रखना है सर? नहीं, नहीं, इसमें कर ले, 10 AB तक खत्म कर लेते हैं, फिर ओके सर, नेक्स्ट में। इससे एक क्वेरी और है सर, इफ ए यूनिवर्सिटी हैव फाइल्ड 9A फॉर एनी अर्लियर ईयर्स of fee not received, जी, and in the current year the fee is not recoverable, then what to do for this amount? देखिए, जब आपने फॉर्म नंबर 9A फाइल किया हुआ होगा, तो उसमें आपने लिखा होगा कि 9A की वैलिडिटी होती है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम तक है। हो सकता है कि प्रैक्टिकली आपको नहीं रिसीव हुई है, तो फिर आपको असेसिंग ऑफिसर को एक लेटर देना है कि इस साल में मैंने 9A फाइल किया था, लेकिन अभी हम्म। तक मुझे ये पैसा रिसीव नहीं हुआ, ना मुझे आगे फ्यूचर में कोई उम्मीद है कि मुझे पैसा रिसीव हो जाएगा। आपको असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो कभी ना कभी जब वो देखेंगे कि आप 9A फाइल किया, लेकिन अभी तक उसकी इनकम आपने असेस नहीं की है, तो वो नोटिस दे सकते हैं। तो इट इज बेटर कि आप एक सबमिशन बना के उनको दे दें कि 9A फाइल किया है, और उसमें जो अमाउंट मैंने एक्यूमुलेशन किया था, वो मुझे आगे कभी ना तो मिला, ना शायद मिलने की उम्मीद है, तो वो फिर वो सही करते हैं। राइट सर। सर यहाँ तक की क्वेरी ओवर हो गई है, और बाकी सर कुछ क्वेरी प्राइवेट ट्रस्ट, फैमिली ट्रस्ट से रिगार्डिंग था, तो इन लोगों का वो क्वेश्चन बाद में था। ले लेंगे, प्राइवेट तो वो फैमिली सर ट्रस्ट के लिए। सेपरेटली मैंने कम्युनिकेट कर दिया कि अक्टूबर में हम इस पे एक सीरीज प्लान कर हाँ, लेंगे। इसमें करेंगे, प्राइवेट ट्रस्ट हाँ, का एक अलग से सेमिनार प्राइवेट करते ट्रस्ट, हैं। हाँ।
So now we can move forward, sir. ठीक, देखिए अब हम अभी तक तो हमने 10 AB की बात की, अब हम बात करते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे टैक्सेशन में हम देखते हैं जैसे ट्रस्ट के केस में, सोसाइटी एनपीओ केस में 3 सेक्शन लगते हैं, सेक्शन 11, 12 और 13। अब इसको बेसिक समझते हैं। बेसिक क्या मतलब, क्या है बेसिक से मतलब ये है कि जो मुझे इनकम, रेवेन्यू इनकम रिसीव हुई है, ठीक है। अब रेवेन्यू इनकम कौन कौन सी हो सकती है? जैसे सपोज मेरा रिलीफ ऑफ पुअर है, तो मुझे क्या मिलेगा? डोनेशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो मुझे क्या मिलेगी? फीस। मेडिकल इंस्टीट्यूट है तो मुझे फीस, या मेरी कोई रेंटल इनकम है, या मेरी कोई इंटरेस्ट इनकम है। तो मीन्स जो भी मेरी इनकम आ रही है विदाउट एनी डिडक्शन ऑन द कॉमर्शियल बेसिस, जो मुझे रिसीव हो रहा है, वो मेरी टोटल इनकम हो गई। उस टोटल इनकम मुझे 85% पैसा खर्च करना है। अब 85 भी पैसा खर्च करना जो मैंने खर्च कर दिया, एक्रूअल नॉट अलाउड। यदि सपोज एक एग्जाम्पल, कि मेरी जो टोटल रिसीप्ट है 1 करोड़ रुपए की मुझे रिसीव हुआ है टोटल, जिसमें रेंटल रेंटल भी है। रेंटल भी ग्रॉस वैल्यू होगी, उसमें 30% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे इंटरेस्ट इनकम आ रही है ग्रॉस, या मेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है तो मेरी टोटल फीस आ रही है, मेरी इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट, सारा मिला के 1 करोड़ रुपए रिसीव हो गया। अब इस 1 करोड़ का मुझे 85% पैसा खर्च करना है, मीन्स 85 लाख रुपए खर्च करना है। और खर्च भी क्या है, अब इन्होंने चेंज कर दिया, जो पैसा आपने पे कर दिया, जो पैसा आपने पे कर दिया, एक्रूअल एंट्री नॉट अलाउड। अब सपोज मैंने इसमें से 80 लाख रुपए खर्च कर दिए रियल में, और 5 लाख रुपए ऐसे हैं जो मुझे पे करने हैं, जो मेरी करंट लाइबिलिटी में आ रहा है, और इनकम एक्सपेंडिचर में आ रहा है मेरे 85 लाख रुपए। तो मैं क्या करूंगा? 85 माइनस जो आपने पैसा खर्च नहीं किया हुआ है, जो आपकी करंट लाइबिलिटी में आ रहा है, वो मैं माइनस कर दूंगा। तो टोटल अलाउेबल एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 80 लैक्स। 15% का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या क्या हुआ? 100 - 15, 85। मैंने खर्च किया 80, 80, और 5 लाख रुपए का मेरा सरप्लस आता है। अब इस सरप्लस का मेरे पास में ऑप्शन है, या तो मैं टैक्स दे दूं, या मैं फॉर्म नंबर 10 फाइल करूं। यदि मैं 10 फाइल करता हूं तो मुझे आने वाले 5 साल के लिए उस पैसे को मैं कभी भी खर्च कर सकता हूं। लेकिन 5 लाख का बेनिफिट मुझे तभी मिलेगा जब मैं फॉर्म नंबर 10 फाइल कर दूंगा विद इन प्रेस्क्राइब डेट। यदि मैं प्रेस्क्राइब डेट के बाद फाइल करता हूं तो उस 5 लाख रुपए का मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा, और मुझे उस 5 लाख रुपए पर जो भी एज पर इनकम टैक्स आएगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। ये नटसेल में बेसिक हो गया कि जो भी। अच्छा, दूसरी जो रिसिप्ट का हो सकती है, कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड आता है मेरी कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट जो है वो भी मेरी डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाती है। इसमें कोई 85% का क्लॉज नहीं होता। ये मैं अनलिमिटेड टाइम तक, पीरियड तक खर्च कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पैसा 11/5 में रखना है। 11/5 का मतलब है या तो मैं फिक्स असेट में रखूंगा, या बैंक में रखूंगा, या म्यूचुअल फंड में रखूंगा, या एफडीआर में। अब ये तो मेरा बेसिक रहा। सेक्शन 11 कहता है कि मुझे जो भी इनकम हुई है उसका मुझे 85% पैसा खर्च करना है। 85% खर्च कर दिया तो रिमेनिंग 15% जो बच रहा है आपका, वो मेरा एग्जम्प्ट है, उस पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं अगेन एग्जाम्पल देता हूँ, मेरी 100 रुपीज की इनकम है और मेरा एक्सपेंसेस हुआ 95, तो रिमेनिंग 5 जो है वो मेरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। 100 रुपीज की इनकम है, 105 रुपये मेरे खर्च हो गए। 5 रुपए जो मेरे खर्चे हुए हैं वो कॉर्पस से हुए हैं, या अनसिक्योर्ड लोन से हुए हैं, या एक्यूमुलेशन से हुए हैं। तो 5 रुपये जो मेरे एक्सेस खर्च हुए हैं, एक्सेस इज नॉट अलाउड फॉर द फ्यूचर एप्लीकेशन। तो ये तो 100 का मेरी इनकम हुई और 100 का मेरा खर्चा हो गया, आपका टैक्सेबल इनकम 0। ये तो एक बेसिक प्रिंसिपल रहा इसका। अब मैं सेक्शन वाइज सेक्शन करता हूं। अब इसमें कुछ इशू आता है, जैसे पहला इशू आता है डेप्रिसिएशन का। अब आज की वर्किंग में जो डेप्रिसिएशन का लॉ है, लॉ तो वैसे कहता है कि यदि आपने एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट, यदि आपने एप्लीकेशन ले लिया है तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि डबल डिडक्शन नॉट अलाउड। लेकिन अल्टीमेटली अब इन्होंने ITS 7 में डाला है, या अब जो पेमेंट बेसिस पे कर दिया है, तो अल्टीमेटली नटसेल में ये रहे है कि डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में है, अब मैं इनकम एक्सपेंडिचर आपके सामने लेता हूँ, अगेन वही वाला, 1 करोड़ रुपए की मेरी इनकम है, 85 लाख की मेरे खर्चे हैं, 5 लाख रुपए के ऐसे खर्चे हैं जो मेरे पे नहीं हुए हैं, और उसमें 2 लाख रुपए का मेरा डेप्रिसिएशन है। तो अल्टीमेटली अलाउेबल एक्सपेंडिचर फॉर द रेवेन्यू यूजर कितना रहा? 85 -5 -2 मीन्स 78 लाख मेरा एप्लीकेशन, अलाउेबल एप्लीकेशन ऑफ द रेवेन्यू नेचर। अब फर्दर उस में कुछ मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। तो कैपिटल जो भी एक्सपेंडिचर होगा जो आपने अपने पास से खर्च किया हुआ है, यदि आपने लोन लेके खर्च किया हुआ है तो लोन के अलावा जो आपने खर्च किया हुआ है वो पोर्शन भी मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड माना जाए। तो इन सब का टोटल जो है मीन्स रेवेन्यू नेचर का अलाउेबल एक्सपेंडिचर प्लस एनी टाइप ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों का टोटल प्लस 15% करके आपका यदि 100 बैठ जाता है तो आपको किसी भी तरह की टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आएगी। अदरवाइज अगर नहीं बैठता है तो आपको फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है। या तो 10 फाइल कर दें, या जो आपके इनकम बच रहा है, जो आपने खर्च नहीं किया, सरप्लस आ रहा है, उस पर आप टैक्स दे दो। अब इसमें जो टैक्स लगेगा वो लगेगा इंडिविजुअल रेट। अगेन 15% का एग्जेम्पशन देने के बाद भी जो आपका बच रहा है पैसा, उस पर इंडिविजुअल रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। मीन 2.5 लाख तक आपको छूट मिलेगी। उसके बाद में ओल्ड रिजिम वाले जो टैक्स रेट है वो आपको इसमें लगते हैं। न्यू रिजिम जो है वो ITR 7 या 139(4)A 4B 4C 4D के लिए अप्लाइड नहीं होता है, एप्लीकेशन नहीं होता है। तो ओल्ड के हिसाब से भी 2.5 लाख तक की छूट, 2.5 से 5 तक 5%, अब वो 3 लाख हो गई है। 3 से 5 तक 5%, और 5 लाख से 10%, 5 लाख से 10 लाख के बीच 20%, उसके बाद में 30%। इस हिसाब से आपको टैक्स देना है, प्लस 4% का एजुकेशन सेस। तो ये तो उसकी टैक्सेबिलिटी रही नटसेल। अब इसके कुछ ऐसे फॉर्म है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। पहले फॉर्म नंबर 10 का मतलब है मेरा 85% पैसा खर्च नहीं हुआ है। अगर 85% पैसा खर्च नहीं हुआ है तो मुझे इसके लिए फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है। एक आता है फॉर्म नंबर 9A। 9A का मतलब है कि जो इनकम मुझे रिसीव नहीं हुई या ईयर एंड पे रिसीव हुई है, तो उसके लिए मैं फॉर्म नंबर 9A फाइल कर सकता हूँ। और जिस ईयर में मुझे अमाउंट रिसीव होगा उस ईयर में मेरा अमाउंट इनकम में जुड़ जाएगा, और उसी हिसाब से मुझे उसका 85% पैसा खर्च करना है। अब आ गया फॉर्म नंबर ऑडिट का, 10B और 10BB। 10B का मतलब है मेरा जो टर्नओवर है इंक्लूडिंग कॉर्पस, ग्रॉस रिसीट प्लस कॉर्पस, यदि मेरी 5 करोड़ से ज्यादा है तो मुझे फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है। 5 करोड़ से ज्यादा तो 10B फाइल करना है, 5 करोड़ से कम है तो 10BB फाइल करना, बट सब्जेक्ट टू FCRA। यदि आपने कोई FCRA का पैसा ड्यूरिंग द एनी अमाउंट रिसीव करा है, तो चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम हो, आपको फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है। या तीसरी सिचुएशन, आपने इंडिया के बाहर कोई पैसा खर्च किया हुआ है, चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ है या 5 करोड़ से कम है, तो इस केस में भी आपको ऑडिट का जो फॉर्म फाइल करना है वो 10B फाइल करना है। तो 10B और 10BB में ये फर्क ये है, 10B 5 करोड़ पहली सिचुएशन, 5 करोड़ से ज्यादा 10B। या यदि आपने FCRA का सिंगल पैसे भी लिया हुआ है, मीन 100 रुपये भी आपने FCRA का कंट्रीब्यूशन लिया हुआ है, और आपका टर्नओवर चाहे 1 लाख हो या 4 लाख हो या 10 लाख हो या 4 करोड़ हो, आपको फॉर्म नंबर 10B फाइल करना है एज ए ऑडिट रिपोर्ट। तो ये ऑडिट रिपोर्ट का मैंने बता दिया। 10B और 10BB, जहाँ पिछले साल काफी लोगों ने गलती मिस्टेक हो गई थी, बाद में इन्होंने एक चांस भी दिया था कि आप अपनी फॉर्म को रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो काफी लोगों ने रेक्टिफाई किए भी हैं। तो अब अच्छा, अब इसकी आप आती है डेट। आज की डेट में ये बड़ा क्रिशुअल है कि डेट कौन सी है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि आपकी कौन सी डेट है। तो अभी हालांकि आएगा, अभी 15 सितंबर आप पास होने दो, उसके बाद में दोबारा से शायद डेट आएगी कि कौन सी डेट आती है ऑडिट की, और कौन सी डेट आती है आपकी ITR फाइल करने की। दोनों के बीच में 30 दिन का फर्क है, सबको पता है। तो आज की डेट में अभी जो डेट है वो 30 सितंबर ऑडिट की है, 10B और 10BB फाइल करने की। और 31 अक्टूबर अपनी जो डेट है वो ITR फाइल करने की है। और हो सकता है
हो सकता है वैसा भी हो नहीं सकता, 100% कन्फर्म है कि ये डेट बढ़ेगी, क्योंकि 15 सितंबर तक की जो 31 जुलाई की डेट थी वो 15 सितंबर हो गई है। 15 सितंबर तक अभी इंडिविजुअल रिटर्न जाने हैं, उसके बाद में फिर ऑडिट का जाएगा, फिर आईटीआर का जाएगा, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से फिर रिटर्न फाइल होगी। अब एक जो मेन इसमें इशू आता है, क्लू आता है कि यदि मैंने फॉर्म 10A भी फाइल किया, वो बाई चांस रिजेक्ट हो गया, सीआईटी एग्जामिशन ने नहीं माना और मुझे फर्दर रिन्यूअल नहीं दिया, तो मेरे पास में ओनली वे आउट कि मुझे आईटीएटी जाना पड़ेगा। और आईटीएटी में भी आपका केस तभी आपका वो होगा जब आपने प्रॉपरली सबमिशन फाइल की हो। यदि आपने प्रॉपरली सबमिशन नहीं फाइल की तो फिर आपका आईटीएटी भी नहीं मानेगा, और आईटीएटी ने भी नहीं माना तो 115 टीडी लग जाएगा। और 115 टीडी का मतलब है एक्रेटेड इनकम। जो आपकी बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं वो मार्केट वैल्यू लगेंगी, लेस करंट लाइबिलिटीज और अनसिक्योर्ड लोन, उसके बाद में जो पैसा बच गया उस पर 30% के हिसाब से टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, और उसी हिसाब से फिर आपको पे करना पड़ेगा, प्लस सेस प्लस इंटरेस्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे जब भी हम रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराएं, तो कोशिश हो कि हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल ना हो, और फिजिकली जाके जरूर मिलें, अपना विजिटिंग कार्ड दें इंस्पेक्टर को, आईटीओ साहब को, और उनसे कम्युनिकेशन प्रॉपर रखें, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे टाइम से सबमिट करें। क्योंकि क्या होता है, यदि आपने टाइम से डॉक्यूमेंट सबमिट करे हैं उसके बाद भी यदि रिजेक्ट हो जाता है तो आईटीएटी में हमें बेनिफिट मिलता है कि देखो साहब, हमने इन्फॉर्मेशन तो सारी दी है, ये हमारे डॉक्यूमेंट है, ये हमारी एक्नॉलेजमेंट है, जो जो हमने सबमिशन दिए हैं उन सबके लेटर आपके पास होने चाहिए। तो आईटीएटी में वेटेज मिलती है कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो सीआईटी एग्जामिशन की तरफ से हुई है, आपने तो डॉक्यूमेंट सबमिट किए। यदि हमने डॉक्यूमेंट ही सबमिट नहीं करे तो आईटीएटी फिर कहता है भाई जब आपने वहां नहीं किए तो यहाँ आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इट इज बेटर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कि फिजिकल पेपर जरूर सबमिट कराएं, जो भी सबमिट कराएं उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लें, अपनी फाइल में लगाएं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ें। अब यहाँ किसी का कोई क्वेश्चन है सुमित जी, तो क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सोनल, कोई क्वेश्चन आंसर है किसी का? Yes, sir. Just a moment. जी। So the question is, if basic exemption limit is 2.5 lakh, या is also available to trust on calculation of the tax liability of the trust. देखिए, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देके समझाया, 1 करोड़ रुपए की मेरी इनकम है, 80 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए, 80 लाख के खर्च करने के बाद 15 लाख का बेनिफिट मिल गया, मेरी इनकम आ गई 5 लाख रुपए की। अब जो 5 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा, 2.5 लाख तक फ्री है, 2.5 से ऊपर 5% मीन्स 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, मीन्स बेसिक एग्जाम्पशन आपको मिलेगी और इंडिविजुअल रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। इसमें एक सेक्शन आता है 115 बीबीआई। यदि मेरी कोई इनकम 115 बीबीआई में कवर हो रही है तो वहां स्टेट फॉरवर्ड पर 30% का टैक्स लगता है। The next इसको हम question. स्पेसिफाइड इनकम बोलते हैं। Okay. So the next question is time limit for expenses when filled Form 9A, an application of income in case of advance payment. नहीं देखिए, नहीं, एडवांस पेमेंट के लिए 9A नहीं फाइल करते। 9A उसके लिए फाइल करते हैं कि जो अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ पहली सिचुएशन, या मुझे ईयर एंड पर रिसीव हुआ है, एडवांस के लिए 9A नहीं फाइल है। Okay. And do we have to file hard copy also? फॉर विच 9A की? नहीं नहीं, 9A आपको ऑनलाइन फाइल करना है, नो हार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट बिफोर आइटम, ओनली सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन। Uh, the next question is, can we revise or modify Form 10? नहीं, 10 का कोई ऑप्शन नहीं है, आप 10B और 10 भी रिवाइज कर सकते हैं, 10B का कोई ऑप्शन नहीं है, यू कांट चेंज 10, Okay. 10 सॉरी। Form 9 and Form 10 फाइल करने की डेट। देखिए, लॉ के हिसाब से जो थी वो 30 सितंबर थी, लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन भी आएगा, यदि आप बिफोर द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दें तो आपका माना जाए। The last question is, trust form for education running school. What is 1023C? देखिए देखिए देखिए, 23C के दो सेक्शंस हैं, एक तो 23C 4, 5, 6 और 6A है,
एक है 1023C थर्ड एडी। यदि आपको लगता है कि मैं अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, प्योरली एजुकेशन में है, आपका मोटिव प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, तो आप इस सेक्शन में फाइल कर सकते हैं। आपको 12AA का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओनली रिक्वायरमेंट इज अकाउंट टू बी ऑडिटेड एंड ITR 7 टू बी फाइल विद इन टाइम। Okay. Is there any penalty if filed 9A or 10 before ITR date? नहीं, पेनल्टी After नहीं है इसमें। तो 30th September. पेनल्टी है कि आपको जो आपने बेनिफिट लिया है वो आपको बेनिफिट जीरो हो जाए। जैसे आपने, जैसे पिछली एग्जाम्पल में मैंने कहा था 5 लाख रुपए आपके शॉर्ट पड़े हो, आपने कम खर्च किए, 5 लाख रुपए का आपको फॉर्म नंबर 10 फाइल करना है। यदि आपने फॉर्म नंबर 10 टाइम से नहीं फाइल किया तो 5 लाख का जो बेनिफिट है वो जीरो हो जाएगा। पेनल्टी नहीं है इसमें तो। Okay. And Form 10A additionally hard copy whether to file. नहीं नहीं, नो हार्ड कॉपी हैज टू बी रिक्वायर्ड टू सबमिटेड। ओनली जो आपने अनेक्सर्स फाइल किए हुए हैं वो आप फिजिकल सबमिट कर दें। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, तो उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का इट इज द सॉल्यूशन कि आप फिजिकल पेपर फाइल कर दें। Okay. यस सर, एक क्वेरी और आई है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एडवांस पेमेंट आपने अगर किया हुआ है तो उसका बेनिफिट आपको एक ही बार मिलेगा। ओके। मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है, मिल जाएगा आपको। 12A की रजिस्ट्रेशन है, स्टिल ITR 5 कैन बी फाइल्ड। नहीं, अगर आपके पास है 12AA का रजिस्ट्रेशन, ITR 5 आप फाइल कर रहे हैं डिपार्टमेंट लेकर, लेकिन जब फर्दर आप रिन्यूअल के लिए जाएंगे तो वो रिन्यूअल नहीं करेगा फिर। Okay. और एक लास्ट क्वेश्चन सर, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू AY 24-25, नो रिन्यूअल फाइल्ड येट, कैन वी फाइल 10A फॉर AY 25-26 और 26-27? नहीं, देखिए, जब आपके पास में मैक्सिमम वैलिडिटी आपके पास में 23-24 AY तक की थी, वो आपने नहीं फाइल किया, तो अब आप दोबारा से नहीं फाइल कर सकते। नहीं, विद इन टाइम पीरियड में आप विद कंडोनेशन के साथ फाइल कर सकते हैं। तो अब आप, अगर आप चाहें तो, क्योंकि आपका पीरियड बहुत निकल गया, यदि एक आध दिन या 2-4 महीने होता तो कंडोनेशन के साथ फाइल कर सकते थे। अब नहीं कर फाइल कर सकते। बस सर, आई थिंक सर सारी क्वेरी हो गई सर। एनी अदर इशू यू वांट टू? एक क्वेरी आई है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज इट एप्लीकेशन ऑफ फंड? यस, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो भी यदि टैक्स पे भी किया हुआ है, इट इज पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन ऑफ। ओके, सो वी आर डन। सर वी आर डन सर विथ क्वेरीज। एनी अदर पॉइंट? सो एक क्वेरी और आया है, व्हाट इज ऑप्शन अवेलेबल नाउ? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वैलिड अप टू AY 24-25, जिसकी रिन्यूअल फाइल नहीं करी थी, उनका आया है, व्हाट इज ऑप्शन अवेलेबल नाउ? ऑप्शन कोई अवेलेबल नहीं है। अब आप जैसे जहां थे वहीं है, दोबारा से ही अब आपको फॉर्म 10A फाइल करना पड़ेगा। ओके। जी सर। सर और कोई टॉपिक भी है अभी? क्वेरीज देखते हैं। आपने 1 घंटे का टाइम दिया, अभी आप ऑलरेडी। ऑलरेडी सर, राइट राइट यस। राइट। इसीलिए, क्योंकि सर ये टॉपिक ऐसा है, NPO टैक्सेशन ऑडिट, जिसमें हाँ, जितना टाइम बिल्कुल भी, सर, बिल्कुल और बिल्कुल। मैंने आपके जब भी सेशन देखे ना कि ये एक्सीड करे हैं, क्योंकि क्वेरीज खत्म नहीं हो पाती हैं इस नहीं, टॉपिक। अपना तो पर्पस ये रहता है कि मेंबर्स की क्वेरीज आए हाँ और हाँ वी हाँ गिव द हाँ। आंसर और दे सेटिस्फाइड रहे कि हाँ भाई इसका राइट। आंसर मुझे मिल तो रहा है। बहुत सारे लोगों की बहुत डिस्कशन हो गया ऑलरेडी, 70 मेंबर्स हियर। सो जी। सोनल जी, आगे Hmm. क्लोज करते हैं सेशन को। एनीथिंग यू वांट टू कम्युनिकेट? So, thank you so much, sir, for this insightful session. Now, I take this opportunity to invite all the participants to become a part of the CASA family.
a Thank you. vision for professional development, social networking, and charitable initiatives. Through the CASA Life Membership Program, you can register once and enjoy lifelong opportunities to grow and contribute together. As a member, you will benefit from exclusive access to specialized subject courses, knowledge enhancing seminars, engaging physical programs, enriching spiritual sessions, exciting sports activities, and so on. So, join us and be part of a lifelong journey of learning, networking, and services. Thank Uh, you, Sonal. Thank you, so, Sonal. Sumiji will share the link. No, yes, we have shared, and thanks to all participants who always join and spare your valuable time for learning Yeah. this uh, through this initiative. And thanks to Ved sir for your time. Thank you, Ji. Thank you. Thank you. Thanks to all. Thank Thank you. you. Have a great day ahead. Thank you.